अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की थी. Tell me the difference which the youth of India is feeling after this trip of the Prime Minister. I mean, youth of India here or the diaspora? Youth of India here, yeah. Yeah, we are like very much ever since Prime Minister Modi took over, everything has changed in according to like basically like how we used to feel pride. Like in the school, we didn't feel as accepted, but ever since he has, taken India to a global platform in such a way where like when we say we are Indian, we are respected differently, we were looked upon differently. We are like more accepted in the community of Americans, like as an equal. That's what I feel. Yeah. Okay. यहाँ पर मैं कपिल आप वहीं पर रहिएगा, मैं थोड़ा इस तरफ से आगे बढ़ूंगा. Okay, you want to say something? Yeah, go ahead. While we was taking the photo studio, when he came to us, we feel the energy of what he has done for the nation. Okay. अब मैं सीधे जरा इस तरफ चलूंगा. थोड़ा सा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं उनके पास आऊंगा. कपिल आइए जरा. मैम आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है. मुझे ये बताइए आप लोग, how do you feel about this trip of the Prime Minister in America? A trip, very happy. Very, very happy. And why? And why? Because I love him. Okay. The way he doing everything, not only for Gujarat, not only for his town, all over the world, all over the India. And now he wants to establish the relationship with USA. And it's going very well. Okay. And it's going to go very well. Okay. कपिल जरा ये टेबल दिखाइए कि किस तरीके से अब भारत जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको. मैम मुझे एक बात बताइए. You understand English or you understand Hindi? No, English you said? Yeah. Okay, never mind. That's okay. I can't speak Hindi. I understand, but I can't speak Hindi. Never mind. So, how do you view Prime Minister's trip to US now? It's a privilege. He's been here, and he's actually promoting a lot of non-Indians, the ones who don't live, the local Indians. It's NRIs, and we are really fortunate to see him here. Definitely, like we want him to be here, and then he's also supporting all the Indians around. So. Okay. Okay. मैम मुझे आप थोड़ा सा आप अगर आगे आ जाएं. Okay, never mind. You're blushing. It's okay. मैम आप मुझे बताइए. Okay. Okay. English or Hindi? English. Okay. So, is there any difference in the perception of Americans towards India, the way things are shaping up, and especially after this trip of Prime Minister? I think Indians, the Indian diaspora is very excited about the changes in India and what Modi ji has done, and we're very happy that he's here, and it seems like a very successful trip to the United States. Okay. Okay, that's interesting. आप मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, आपको क्या उम्मीद है? अब यहाँ पर क्या होगा? क्या बोलेंगे वो? यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक बार तो मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ वेरी प्राउड कि यहाँ के जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनकी कम्युनिटी है, उनके अचीवमेंट पर, उनके इन्वॉल्वमेंट्स पर, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो कैसे वाइट हाउस में इतने इंडियंस ओरिजिन वाले आपको देखने मिलते. और यूथ कि कल इफ़ यू वेर इन वाइट हाउस यस्टरडे, तो कल यूथ, हम तो फर्स्ट जेन है, लेकिन सेकंड जेन जो बच्चे यहाँ बॉर्न हुए हैं, कई हिंदी समझते भी नहीं, वो भी इतने एक्साइटेड थे टू रिसीव मोदी जी और टू बी देयर जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम. तो दैट शोज़ कि कितना रिस्पेक्ट है, और मोदी जी आई एम श्योर ही इज़ वेरी प्राउड. ओके मैम आप मुझे बताइए, ये जो अभी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अगर मैं आपकी एज अ फैमिली यूनिट की बात करूं यहाँ पर और इंडिया, तो यहाँ की जो जिस तरीके से आप लोगों के अंदर एक ट्रांजिशन आया है, क्या आप वैसा ही इंडिया में भी फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स? लाइक कुटुंब भावना, कुटुंब भावना तो इंडिया में तो बढ़ ही रही है, लेकिन यहाँ पे भी और ज़्यादा मजबूत है. ऐसा नहीं है कि यहाँ सब बिखरा हुआ है. और स्पेशली हमारा जो अमेरिकन इंडियन समाज है, वहाँ अभी भी स्ट्रॉन्ग टाइज है बच्चों में. और जो सेकंड जनरेशन है, स्पेशली वी बिलोंग टू स्वामीनारायण, BAPS, एंड हमारे में जो कुटुंब भावना हमारे गुरु ने इंस्टिल की है, प्लस जो इंडिया से नरेंद्र मोदी का जो संदेश भी आ रहा है यहाँ पे, और जो सपोर्ट मांग रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि द बॉन्डिंग ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने वाला है. ओके एक और चीज़ मुझे बताइए मैम, मैम ने यूथ की बात की थी.
यूथ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद या जो प्रधानमंत्री चीज़ों को बता रहे हैं उससे? इंडियन यूथ यस, इंडियन यूथ पहले इतने सालों में कितने प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर गए, राइट? तो यूथ उनको पता भी नहीं चला कि व्हाट इज़ इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है या यहाँ पर आके गए। जैसे मोदी का अलग ही वेव है, सारे यूथ को पता है कि हुई हमारे प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पे उनका कितना मान सम्मान हो रहा है। तो हमारे यूथ भी उनके बारे में जानते हैं और दे आर ऑल्सो प्राउड कि दे आर इंडियन अमेरिकन। बैक टू इन द स्टूडियो। निशांत, तो आप जो बातचीत कर रहे हैं, अच्छा एक अपडेट आपसे चाहेंगे निशांत कि प्रधानमंत्री का इंतजार क्योंकि वहां पर हो रहा है, कितना और वक्त लग सकता है, इस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सीधे यहां से निकलेंगे बाहर, सीधे बाहर जाएंगे और वो हम सभी को देखना होगा कि आखिर इसके बाद, क्योंकि देखिए जो मैं अभी अगर मैं देख के बताऊं आपको, यहाँ पर इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो आप ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर 7:32 हो रहे हैं। जहाँ तक मेरे पास जानकारी थी कि शायद 8 बजे प्रधानमंत्री को निकलना था। अच्छा। लेकिन अभी सिर्फ 7:32 पर वो यहाँ पर अगर नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर वो आएंगे, उनका इंट्रैक्शन होगा जो कि इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए यूएस इंडियन कम्युनिटी की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, और फिर इसके बाद वो सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एक टेबल ऐसी है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर उस टेबल पर वापस आऊँगा। Anyway, now coming back to it. तो जोश चाहिए मैं देता हूँ। हाँ, मैंने आपकी शो शर्ट के अंदर कुछ देखा था, बताइए मुझे। फ्रॉम एनर्जी सिटी ह्यूस्टन। ये कपड़े नहीं उतार रहे हैं, ये देखिए। और ये 1.4 बिलियन लोग भारत में रहते हैं, हमारे दिल में भारत माँ रहती है, एनआरआईज़ के। और जब मोदी जी भारत के लिए इतना कर रहे हैं, फर्श से लेके अर्श तक, जैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, गैस चूल्हा योजना जो उन्होंने माताओं के आंखों फेफड़ों के लिए किया, या शौचालय उन्होंने औरतों की इज्जत के लिए किया, फसल बीमा योजना उन्होंने किसानों के लिए किया, फसल उगाने से लेके मार्केट तक देने तक, आयुष योजना उन्होंने मेडिकल तक किया, और आसमान में उन्होंने एक दिन घोषणा की, हे मेरे मित्रों 11 बजे तुम मेरे साथ में रेडियो पे अटैच हो। एवरीवन वाज थिंकिंग क्या होने वाला है, और उन्होंने घोषित किया कि भारत विश्व का चौथा कंट्री बन गया है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है। और अभी जब 2012 में भारत को वर्ल्ड बैंक ने फ्रेजाइल 5 में डिक्लेयर कर दिया था कि न केवल भारत की इकोनॉमी नेगेटिव जा रही है, बल्कि जो भारत है दूसरे विश्व की इकोनॉमी को भी। You're proud of India, I can see that. I can see that, sir. Okay, now move around. Okay, now just turn around. अब यहाँ पर कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँ। There are so many tables है यहाँ पर, और पीछे आपको इको सुनाई दे रहा है। सर, आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे जल्दी से बताइए, in one word or 2 words, how will you describe? That's a camera, sir. आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे को? Full of energy, full of India in the world scene. It's becoming a leader. 1 word or 2 words, sir. Full of energy. 1 word or 2 words, sir. Highly spiritual person. Okay. उनके दौरे को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत डायनामिक है। Okay. कैसा रहा उनका दौरा, सर? कैसा रहा? प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कैसा रहा अमेरिका का? It was just fabulous, excellent. 1 or 2 words, okay, sir. कैसा रहा प्रधानमंत्री का ये दौरा, सर? हमारा प्रधानमंत्री is a युग पुरुष, so he is creating the history in all lines of parts of the life to the entire world. World needed this person, and what is happening with America, the meeting with America, this is the golden era of our life, and we are happy that we are witnessing this. Okay, ma'am, 1 or 2 words कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को? I can feel that today I got the opportunity to take a picture next to him, and I felt like he has so much charisma, which I had seen him from far in the on TV everything, but feeling that energy, I felt maybe people felt when they saw Lord Krishna, maybe that may be the true. Yeah, because Bhagwan doesn't say that I'm Bhagwan, right? Us feeling somebody as Bhagwan, so maybe I felt the same. अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा, सर, आप कैसे डिफाइन करेंगे कुछ शब्दों में? I will speak in Hindi. Never mind. Okay. He has transformed India for better. He has made India a world leader. Thanks to Modi ji.
World leader transform India for better. So your take on it? Yeah, he's the world leader. He makes in all Indians proud, and finally India got a leader. Finally, India's got a leader. Ma'am, your take. How would you define Prime Minister's visit to America now? Modi ji world leader. Okay, Modi ji world leader. There you go. So ये एक spirit है जो हम सबके सामने सुनाई दे रही है. Back to you in the studio. और लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरह से वहां पर लोगों में काफी जोश है, काफी उत्साह है और बहुत बेसब्री के साथ रीगन सेंटर में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उनके संबोधन का। और ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है दर्शकों को। जो बाइडेन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो टी शर्ट गिफ्ट की है, खास बात यह कि एआई थीम पर इसको डिजाइन किया गया है। खास बिजनेसमैन अमेरिका के सीईओज के साथ मुलाकात की है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जो लंच होस्ट किया, लंच दिया प्रधानमंत्री मोदी को, और उनके साथ अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी मौजूद थे इस लंच के दौरान। और इसके अलावा अब बस रीगन सेंटर में इंतजार है, भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। और यह आखिरी कार्यक्रम, जैसा निशांत बता रहे हैं, यह आखिरी कार्यक्रम है 4 दिन के इस दौरे का अमेरिका के, और इसके बाद सीधा मिस्र के लिए रुक कर जाएंगे, मिस्र की जो यात्रा है। और निशांत, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इस रीगन बिल्डिंग में मौजूद है, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में मौजूद हैं। अभी क्या चल रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? कार्यकर्ता जितने लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और उनके बाद उनका जो भी है वो शुरू होगा। सो राइट नाउ ही इज इन द प्रॉपर्टी ऑलरेडी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका इस वक्त फोटो सेशन चल रहा है? यस सर। People volunteer for all this, make all this thing possible. They are being taking photo with them and all that. That's what's going on with the Prime Minister. अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, तो ये कितनी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर बोलना शुरू करेंगे? अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है, maybe more detail might be not. But I'm told कि शायद 8 बजे तक उनको निकलना भी है। Yeah, so he's going to address the diaspora of Indian community और फिर वो निकल जाएगा। Yes. That he's going to be speaking in another 10-20 minutes. 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन करेंगे। बैक टू यू करना। और ये एक बार फिर से अपडेट बता दें, बड़ी खबर ये, रीगन सेंटर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो इंतजार था, और यहाँ पर इस वक्त जो लोग मौजूद है रीगन सेंटर में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं पीएम मोदी। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर उस वक्त की जब लंच होस्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तरफ से, और एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भी उस दौरान मौजूद थे। और इसके साथ साथ एक और तस्वीर आप देखिए, कैनेडी सेंटर, जहां पर बस कुछ देर पहले अमेरिका और भारत के पार्टनरशिप ज्वाइंट फोरम को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और कई बड़ी बातें की। तमाम जो अपार संभावनाएं हैं उनका जिक्र किया गया भारत और अमेरिका के बीच। और आप देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, लाइव फीड आप देख पा रहे हैं रीगन सेंटर से, जहां पर अभी की अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं और करीब 10 से 15 या 20 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा निशांत। और बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है और देखना होगा कि यहां पर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जोश जो है वो देखते बनता है। ये देखिए, आइए जरा, कपिल को मैं बुलाता हूँ, एक मिनट जरा। मैं ये जो जोश देख रहा हूँ आपका, हाँ जी, ये एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। अलग ही लेवल पे जा रहा है। ये इंतजार की घड़ियां खत्म करने के लिए या वाकई में है? पता नहीं, जोश तो हमसे अंदर से आ रहा है, कितने दिनों से आ रहा है अभी तक एक्साइटमेंट। जो आप गुनगुना रहे थे, थोड़ा सा और गुनगुना दीजिए। और गाएंगे, कौन सा वाला गाना है? एनीथिंग। Hey, I need everybody. Okay, go to him. He can sing for you. ये आप गाना गाएंगे? अच्छा ठीक है, यहाँ पर Okay, go ahead. You can start off. I can start. चलो, I can start. है कौन सा है? प्रीत जहाँ की रीत, कौन सा गाना? हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India. It happens only in India. वो इनको सब इकट्ठा करके गाऊंगा मैं, प्रीत जहाँ की रीत सदा। दिवाली है, उस तरह का जश्न
नेवर माइंड। अब यहाँ पर मैं देखिए, मेरे सामने जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल ये है, कपिल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये रोनाल्ड रीगन का एट्रियम है बिल्डिंग का जहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, और वो देखिए उस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का एड्रेस आएगा। सबको उसी चीज़ का इंतज़ार है। इन जस्ट अबाउट फ्यू मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स ये शुरू हो जाएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर इट। लेट्स सी यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि ही हैज़ हैड अ वेरी हैक्टिक सेशन, और इतने हैक्टिक सेशंस के बाद यहाँ से वो सीधे टेक ऑफ करेंगे। बट इंडियन कम्युनिटी के पास उनको आना था, इंडियन कम्युनिटी ने उनके सामने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें आपसे मिलना है। ही सेड ही नेवर डिसअपॉइंट्स। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, न्यूयॉर्क में उनके पास बहुत कम टाइम था। उस टाइम पर मैंने, अगर आपको याद होगा, जब हमने वो खबर दिखाई थी कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा उस वक्त जब मैं उनसे सवाल पूछा था, न्यूयॉर्क में उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक निकी पटेल जी ने एक माला तैयार की थी जो उन्होंने भगवान को पहना के उनको पहनाने की इच्छा रखी थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप होटल के बाहर मेरा इंतज़ार करिएगा। वहाँ पर आप होटल के बाहर पहुँचिए, मैं जैसे ही यूएन से निकलूँगा होटल में जाकर तुरंत आपके पास आऊँगा। और एग्जैक्टली उन्होंने किया। सो ही हैज़ लॉट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू इंडियन कम्युनिटी, बावजूद इसके कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार इस टाइम को मैनेज करना, क्योंकि बैक टू बैक सेशंस होते हैं, बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन कम्युनिटी ही ऑलवेज हैज़ टाइम। बैक टू यू करना। बिल्कुल निशांत, और जैसा आपने बताया है कि अब बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर इस मंच से प्रधानमंत्री, इसका इंतजार सबको होगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल, अमेजन, बोइंग के सीईओ से मुलाकात की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अमेजन के सीईओ एंडी जैसी से मुलाकात की है, और बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉन से मुलाकात की है। और उस मुलाकात की तस्वीर ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और सीईओज की जो मुलाकात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही। भारत और अमेरिका के बीच जो बिजनेस टाइज है, उस लिहाज से अगर हम बात करें, और ये उसी मुलाकात की तस्वीर, गूगल, अमेजन, बोइंग के सीईओ से मुलाकात, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की तस्वीर आप देखिए। इसके साथ साथ सीईओ अमेजन एंडी जैसी, उनसे मुलाकात की है, और बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉन से मुलाकात की है। और बहुत ही खास ये मुलाकात रही, और इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि तमाम जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो और भी ज्यादा, क्योंकि लगातार ये जिक्र हो रहा है कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्थिक तौर पर या बिजनेस के अगर सेक्टर की बात की जाए तो कैसे पार्टनरशिप और बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये मुलाकात उसी तरफ ट्रांसलेट होती नजर आ रही। सुनते हैं क्या हुआ है। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. The excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared, Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BART to more Indian languages very soon. And we are also excited today that we are announcing the opening of our Global FinTech Operations Center in Gift City, Gujarat. And it'll cement India's FinTech leadership thanks to UPI and Aadhaar. And we're going to build on that foundation and take it globally. Most important takeaway is the Prime Minister's passion for India's development. The welcome mat to business and investment and opportunity is, I think, obvious not just to me, but to pretty much everybody who has interacted with him. He does have a specific interest in aviation and aerospace. It's a big vision. He would like for India to play a significant role, not just for India, but for the region broadly. And, at Boeing, we support that 100%. I think it's great when technologies and opportunities align with the vision that a leader has for a country, and that's where we are.
There is a giant domestic market that needs to be satisfied. Airport development is now moving at a pace that the country's never seen before. And then maybe even bigger is the international opportunity, where Air India is making enormous investments, new equipment, new skills, new talents, to be able to support that international traffic, which it deserves a big share of.